हेलो। तो इस YouTube चैनल पे मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि ऐसे लोगों को मैं बुलाऊं हु आर लाइक कंप्लीट इंस्पिरेशन फॉर पीपल। तो अभी मुझे ये लगता है कि भाई मैं जितना बार लोगों को बोलता हूँ कि सर आप एमबीए करिए, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई साहब एमबीए की कोशिश करिए, तो लोग लगता है सर हमारे फादर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, एक आईएम की डिग्री के लिए 20 लाख प्लस काइंड ऑफ मनी चाहिए, हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हितेश सिंह, who has been hailed by the media as the chauffeur's son, who is now driving into IIM Ahmedabad. That's exact the headline. So inke father, he works as a driver with Amul and drives the managing director, and he's often driven Mr. Sodhi into IIM Ahmedabad. So Hitesh, IIM Ahmedabad, how's the Josh? So thank you for inviting me. Josh is very high, sir. When I got that confirmation mail, I was very happy. My father was happy. My parents were like in exuberant. They can't express the feeling into words. I think. Yeah, so it would have been an amazing thing. So Yeah, sir. father says that when he used to visit the campus with Mr. Sodhi, he Yeah. always used to silently pray for your admission here. So was that Yes. the trigger for your MBA decision? Actually, what my father did, actually, every parents do for their children. Like they pray, they are praying for that good life of their child. But what is remarkable is that my father has adopted my dream into as a his dream. When I was in undergraduate, then I think in fourth year, I was attracted by the some course of marketing because in my undergrad they teach some marketing course like Mhm. marketing management. So I was intrigued by that course. So I asked my father, I want to do management in this field, or I want to do MBA. So first of all, they didn't know what is MBA, then how to do that, how to prepare for CAT. So I explained him that this thing is that. So when I explained him the whole thing, he readily agreed that you should do that. So like my parents have adopted my dream as their dream, and they have supported throughout the whole journey, 1.5 year. So I'm very proud to have my parents like that. So before the MBA preparation, like you have done a BTech in dairy sciences specifically? Yeah. Yes. Okay. So therefore, this background would have helped you get into this prestigious food and agribusiness management. So for the Yes. uninitiated, IIM Ahmedabad offers a specialization in food and agribusiness management, where Hitesh has bagged an admission this time. तो क्या तुम्हारा Yes. लॉन्ग टर्म एम्बिशन भी यही है कि मेरे को फूड एग्री बिजनेस डेयरी बिजनेस के साथ जुड़ा रहना है? तो तुम्हारा क्या ड्रीम्स है इसमें? एंड Actually, विद्या कैसे yes. हेल्प? एक्चुअली मतलब आफ्टर ट्वेल्थ व्हेन आई मतलब जब डिसीजन था ज्वाइन करने का एग्रीकल्चर, तभी से मेरा गोल क्लियर था बिकॉज माय फादर हैज वर्क फॉर अमूल, और मुझे भी थोड़ा लगाव है एग्रीकल्चर के मतलब वहाँ पे, बिकॉज वेयर वी कैन हेल्प द सोसाइटी मोर, मतलब वो सेक्टर ऐसा है 70% 60% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है, सो वी कैन कंट्रीब्यूट एट दैट सेक्टर मोर। और मतलब दूसरी बात वो भी थी, जब सोडी साहब कोई भी जगह लेक्चर देने जाते थे, लाइक आई एम अहमदाबाद हो, IRIMA ho. So he used to give some speeches to motivate youth to come into agriculture field. So मेरे पापा भी वो स्पीच सुनते थे पीछे बैठ के आखिरी सीट पे। So अच्छा। वो जब घर आते थे तो मतलब तब तक मैं छोटा था, 10 ईयर में भी और 9 ईयर, तो उसको स्टोरियां सुनाते थे, तो मुझे भी इच्छा हुई कि चलो इस सेक्टर में जाना चाहिए, मतलब तभी से बचपन से इच्छा थी। सो हाँ, वो ऐसा इच्छा है। और दूसरा थिंग कि मेरे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज है, चलो मैं बीटेक में हूँ तो बीटेक भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सो आई हैव मतलब टेक्निकल नॉलेज है, बट मैनेजमेंट का एक नॉलेज भी चाहिए जो फूड सेक्टर में हेल्प कर सकता है, जो सोडी साहब भी बोलते हैं और मैंने सुना भी है इस लोगों से, सो मुझे लगा कि मेरे में जो स्किल्स है, सो आई हैव टू रेप्लिकेट दैट, और मुझे यूटिलाइज करनी चाहिए मेरे तो हिसाब से। विद्या डेयरी में तुम एग्जैक्टली क्या करते थे? एक्चुअली हाँ, विद्या डेयरी में मैं प्रोडक्शन संभालता हूँ, लाइक ऑपरेशन जो बोलते हैं,
मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट दे दिया होता है, एक पोर्टफोलियो होता है, आई एम हैंडलिंग आइसक्रीम पोर्टफोलियो, सो आई हैव टू मैनेज ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ आइसक्रीम, फिर ह्यूमन मैनेजमेंट होता है, वर्कर मैनेजमेंट होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट थिंग। ओके। सो दिस वो सब ऑपरेशंस में इंक्लूड हो जाता है आई थिंक। एंड तो जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ IIM अहमदाबाद में, तो मे बी दिस वुड हैव हेल्प्ड यू, ये जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज तुमको Yeah, फूड yeah. एंड एग्री बिजनेस में एडमिशन Yes, मिला, this right? was this was I think related relevant work experience. So it was good to be have an experience of 10 months to be there. तो तुम्हारा बेसिकली गुजराती मीडियम था, व्हाट, अप टू क्लास Yes, yes. और 12? Up to 12, sir. पूरा क्लास 12 तक गुजराती मीडियम था, Yes, एंड नाउ yes, sir. यू क्वालिफाइड, क्रैक द कैट, तो उसमें एक वर्बल Yeah, सेक्शन होता है, तो yes, sir. लैंग्वेज को तुमने कभी भी बैरियर नहीं बनने दिया, राइट? एक्चुअली मतलब लैंग्वेज बैरियर का एक मतलब एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है माइंड में। मैं वो भी पेशेंट था, मतलब मुझे भी एक बैरियर था कि भाई इंग्लिश मतलब वी कांट डू द मतलब पीपल जो जैसे कि फ्लुएंटली बोल सकते हैं, फ्लुएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बट वन एक टीचर थे इंग्लिश के, वो बोलते थे कि नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। सो मतलब उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला मेरे को, चलो फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर 12th के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि चलो आगे लाइफ में लाइक थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, हम जो गुजराती मीडियम में तो इंग्लिश सीखे, तो मैंने एक बुक रीडिंग की हैबिट बना दी एक। तो स्टार्टिंग से मैंने की चेतन भगत बुक से स्टार्ट की। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया। अभी आखिरी बुक मैंने पढ़ी थी इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, देन जॉर्ज ऑरवेल, वो 2-3 बुक अच्छी लगी मेरे को। सो दिस वाज तो माय लास्ट तुम्हारा बुक। बेसिकली इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी क्या था, कैट प्रिपरेशन और पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा? Actually if we see that cat sector verbal section 80% VARC मतलब वो होता है, आरसी होता है। सो मेरा वर्बल 12th से ही मतलब मैंने रीडिंग शुरू कर दिया था। सो रीडिंग कॉम्पिटिशन मेरा अच्छा था पहले से ही, जितने भी मॉक मैंने दिए उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट मतलब वर्बल में 90-95 तो मैं स्कोर करता ही था। मैथ्स में या तो मॉक में भी करता था, और कैट में भी मेरे 96 अभी परसेंटाइल है ओवरऑल। देन वर्बल में मेरे 95.68 है, बाकी सब में 94 है सर। सो ओ, मतलब वो फॉलो किया मैंने। मतलब जैसे कि मेरी एक बुक रीडिंग की हैबिट थी। अनदर थिंग था, न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करता था, और आर्टिकल डेली 1-2, बस मतलब रेगुलर प्रैक्टिस था। बट मतलब व्हाट कैन मैं बोल सकता हूँ कि मैं रेगुलर था, मतलब जो जो चीज करनी थी वो रेगुलरली 2 आर्टिकल पढ़ो या जो भी करना है, सो बट आई फॉलो एक दैट। चैलेंज आता है कि जब हम लोग जी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे 4 वर्ड के बाद 5वां वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, वोकैबुलरी बिकम्स जी अ हिंड्रेंस। या तो आई हैव फेस दैट इश्यू। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि मैंने कोई आर्टिकल पढ़े हुए मतलब बुक पढ़े हुए, तो हम थोड़ा मतलब जैसे कि यू डोंट फाइंड दैट मीनिंग इमीडिएटली, मतलब आप तुरंत मीनिंग खोजो मत कि क्या इसका मीनिंग है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा एक पेज पढ़ो तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको रिलेवेंट पता चलेगा। अगर हरदम आप डिक्शनरी देखने जाओगे तो फिर आपको आदत लग जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। तो अब मैं वो मतलब अभी भी बोल सकता हूँ कि मगर 20% वर्ड पता भी नहीं होते हैं, but I can comprehend that paragraph and that essay. So convey meaning हो जाता है मेरे हिसाब से। And what cat demands is reading comprehension, not vocabulary, high vocabulary. 80% एग्जैक्टली, वही सेक्शन है, आई एग्री, 24। दैट्स वन थिंग। और पर्सनल इंटरव्यू में लाइक दे आर डिमांडिंग कि आपकी इंग्लिश एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, वैसा कुछ? वैसा होता तो I didn't make it to IIM Ahmedabad, I think so. Because I have like I have some niggle in spoken English, I admit that. But हाँ अगर वो लोग ने वो देख रहे थे कि मुझे कितना अपने बैकग्राउंड के बारे में पता है, लाइक आई एम बीटेक डीटी, सो दे वर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम माय कोर्सेज, they were asking from my work side, and the third thing was they are checking my confidence level, or how I speak there, how I represent myself in front of them. So ये सब चेक करते थे, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट चेक करते हैं। एंड यू से इन दैट न्यूज़पेपर रिपोर्ट कि तुमने कभी ट्यूशंस नहीं लिया, कैट के लिए थोड़ा बहुत लिया था, आई अंडरस्टैंड, बट वो भी हाँ इंटर्नशिप की वजह से तुम ज्यादा अटेंड नहीं कर पाए थे। जी। तो मतलब बेसिकली विदाउट ट्यूशंस एक जॉब के साथ विद्या डेयरी में जनरली क्या है, लोगों को लगता है कि भाई कैट है, IIM अहमदाबाद टारगेट कर रहे हैं तो सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाओ और सारी दुनिया भर की कोचिंग ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, बट यू नॉट डन दैट मच।
Yeah, CAT is not UPSC exam. Like UPSC is the most difficult exam in the, I think maybe in the world, maybe on India वाला. हाँ, तो मतलब आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है. I think जो CAT is the, अगर आपका बेसिक जो स्ट्रांग है तो आप यू कैन क्रैक कैट इजीली. मेरा बेसिक मतलब मैंने क्लियर किया था. हाँ, मे बी आई कुडंट मेक इट टू 99, बट हाँ कि बेसिक क्लियर था, मैथ्स में वर्बल में क्लियर था. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हो. लाइक कैट 18 वाज लाइक क्वांट सबसे हार्ड था. तो कोई कोई मतलब किसी किसी बंदे के मेरे से भी अच्छे आते थे मतलब मॉक में, बट क्वांट हार्ड आया तो बंदा फिसल गया, मतलब वो अच्छा नहीं कर पाया. सो अगर उसने बेसिक किए होते, शॉर्टकट में नहीं गया होता, तो कुड हैव स्कोर मोर देन मी आई थिंक. सो मतलब मैं बोलता हूँ कि बेसिक क्लियर कर लो और प्रैक्टिस करो, हो जाता है कैट, उसमें कुछ लगता नहीं है एफर्ट. कैसे मैनेज करते थे? ऐसे 2 घंटा पढ़ते थे रोज, घंटा भर? या 2 to 3 hours. जब वीकेंड जब मेरी छुट्टी होती थी, आई थिंक वी मतलब हमारे सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है, बिकॉज वी आर एसेंशियल कमोडिटी इंडस्ट्री, तो लाइक वीक ऑफ उसको एक मिलता डेयरी होगा? को. हाँ, वीक ऑफ मिलता था. तब मैं क्या करता था कि एक वो कर दे, अगर मॉक दे दी, मॉक का एनालिसिस कर दिया, 3 hours मॉक्स, देन एनालिसिस कर दो उसका, बस उस एक दिन ऐसा करता था. ऑलराइट, और नॉवेल्स वगैरह कब पढ़ते थे फिर? टाइम कैसे निकलता था? शॉप फ्लोर पे उसके लिए खड़े? मतलब नहीं नहीं नहीं, 8 8 hours मतलब नो चीटिंग, लाइक जॉब 100% फाइट देते थे. जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, घर पे आके कर देते थे. सो मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब नॉवेल की एक हॉबी थी, तो उसके लिए टाइम निकल ही जाता था किसी भी तरह. ऑल राइट. मैं कुछ एंड तुम्हारा इंटरव्यू एग्जैक्टली क्या था? मतलब सम इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की जीके पूछ रहा था, वर्क एक्स रिलेटेड था, सो जस्ट टेक अस थ्रू द इंटरव्यू, मतलब इन सम डिटेल कि वंस यू एंटर्ड क्या हुआ, क्या पूछा उन्होंने? when I entered first, they were asking that my surname is Singh, so why Singh is here in Gujarat. So मतलब they were taking मतलब मुझे कंफर्टेबल जोन में लाना चाहते थे कि चलो कोई बच्चा घबरा ना जाए, मतलब ऐसा. आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू जेंटलमैन टाइप होता है, व्हाट आई एक्सपीरियंस, मतलब लखनऊ का भी दिया है मैंने, वो सबका दिया है, तो देवर लाइक जेंटलमैन पीपल. सो उन्होंने ऐसे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल जोन में लाया. फिर पूछा कि फिर मैंने बताया कि मैं आनंद में बॉर्न एंड ब्रॉट अप आनंद में हूँ, वैसा. फिर आगे चले, फिर मतलब उन्होंने पूछा कि हाँ, वो मतलब एक इंटरव्यू था, मतलब इंटरव्यूअर थे, उन्होंने उसको विद्यार्थी के बारे में पता था पूरा कि क्या चीज है, कहाँ है. सो एक एक बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यूअर को सब पता होता है. डोंट ट्राई टू बी फूल देम. मतलब उनको तो उन्होंने क्या विद्यार्थी पूछा कि जैसे. एग्जैक्टली टेक्निकल्स में घुस जाते हैं कि डेयरी फार्मिंग का नहीं पूछ? नहीं, डेयरी फार्मिंग का नहीं पूछा था मेरे को. एक डेयरी के अंदर ऑपरेशंस में एक मैनेजमेंट लगता है, हैसअप करके लगता है, तो उसके बारे में पूछा मेरे को. हैसअप में के उसके बारे में डिटेल तक गए, मतलब उसमें डिटेल तक गए, ठीक, मतलब वो डिटेल तक पूछा कि एक एक चीज पूछ ली उसके अंदर, हैसअप के अंदर. वो और खत्म होने के बाद फिर थोड़ा डेयरी सेक्टर के चैलेंजेस पूछे, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो पूछा. एंड जनरल नॉलेज वाइज कि इंडिया का जीडीपी क्या है, रणजी नो ट्रॉफी? नो नो, मुझे जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कभी नहीं पूछे थे. करंट अच्छा, अफेयर्स ये के बारे थोड़ा में भी बैकग्राउंड रिलेटेड? बैकग्राउंड रिलेटेड था, और थोड़ा मतलब क्या था कि प्रेशर था, मतलब लगा कि आई एम अहमदाबाद है, हमें कन्वर्ट करना है. तो आई मतलब मैं थोड़ा फंबल हो गया था आखिरी 2 मिनट्स में. सो दे वर आस्किंग दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल इनटू द, मतलब जब आई एम अहमदाबाद में आओगे तो क्या कैसे फेस करोगे सब चीज. सो मतलब मैंने अपना जेन्युइन एग्जाम, मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होगा, मतलब सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के अंदर, रिजेक्शन के अंदर एक क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा. तो फिर मैंने अपने जो फील किया उस टाइम और जो जेन्युइनली आंसर दे दिया, तो परफेक्ट. उनको अच्छा लगा. सो अब कैसा फीलिंग आता है जब रिजल्ट आया? तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते होंगे जो बोलते होंगे अरे ड्राइवर का बेटा है, क्या ये एमबीए करना के सोच रहा है, उन लोग का कैसा रिएक्शन रहा है? मतलब रिजल्ट आने के बाद तो सब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मतलब हाँ, जो पहले पापा को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, अब पापा को रिस्पेक्ट मिलती है. ओ आई तो मीन कुछ नहीं. अमेजिंग लगता होगा उस चीज से कि भाई चलो. हाँ हाँ हाँ, जी जी. इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब कुछ लाइक इनिशियल स्टेज में पापा को लोग बोलते थे कि तुम क्या बच्चे को पढ़ा रहे हो, कुछ काम करवा लो, ऐसा कुछ बोल रहे थे. हाँ. कुछ ओ था. माय गॉड. या डिस्करेज करते थे कुछ. कि पढ़ाई क्यों करवा रहे हो अपने बच्चों को? हाँ, एक आध दो बंदे तो सभी जगह होते हैं कि डिस्करेज करने वाला Correct. है. वो तो फिर बट दे हैव स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, मतलब उन्होंने खुद दोनों 10th पास है मेरे पेरेंट्स, सो दे वर हेल्पिंग मी. चलो मैं नहीं पढ़ा, तुम लोग तुम पढ़ लो, अच्छी बात है. तुम्हारे और सिबलिंग्स लाइक कैसे हैं?
वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? मेरा एक छोटा मतलब आई हैव अ यंगर ब्रदर, वो है अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो वो भी अब कैट ट्राई करके आईएम में घुसेगा। कुछ बोल नहीं सकता है, मतलब मुझे पापा ने इंकरेज किया कि तुझे तुझे जो करना है कर, तो फिर वो भी पापा उसी को उसको फोकस करेंगे। ओके, तो अभी इतना दिन में कुछ सेविंग्स हो गया है सो, या 23 lakhs का लोन लोगे? लोन लेने में कुछ जिटरी फीलिंग्स आ रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को दैट लगता है। बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर स्टार्टिंग द कोचिंग हो, या मतलब बिफोर स्टार्टिंग द मतलब प्रिपरेशन, तो आई हैव मेड क्लियर दैट 23 lakhs अपने बस की बात नहीं है, हमें तो लोन ही लेना है। सो सब पापा को सब चीज पहले बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है और मैं भी ऐसे ट्राई करूंगा। सो कोई जिटर ही नहीं है, चलो खुश है, चलो दूसरे दिन बोलते हैं पापा कब कब अप्लाई करना है लोन के लिए, कर देते हैं। हाँ, आई मीन, आई थिंक आईएम अहमदाबाद के बाद वो लोन 3-4 साल के अंदर पूरा चुक ही जाएगा। हाँ देयर इज हाँ डाउट हाँ हाँ अबाउट। हाँ हाँ। पापा का बर्डन नहीं डालना है, अब तो खुद कर लेंगे कुछ भी। तो तुम पोस्ट आईएम अहमदाबाद व्हाट इज योर प्लान? तो अपना स्टार्टअप करोगे कि जॉब? सर एक्चुअली मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, मतलब आई हैव टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन एट आई एम अहमदाबाद, मतलब जो 2 साल मिले हैं, मैं जिस एनवायरमेंट से आता हूँ वहाँ पे एनवायरमेंट पूरा अलग है, पूरा एब्जॉर्ब, मतलब क्या चीज है एब्जॉर्ब करना है, थोड़ा एनवायरमेंट थोड़ा सीखना है, मतलब वैसा कुछ सोचा है। लॉन्ग टर्म गोल एक है दिमाग में, बट हाँ बस शॉर्ट टर्म गोल अभी 2 साल के लिए कुछ रखा नहीं ऐसा कि। आई थिंक हाँ, वही ओपन माइंड से जाना चाहिए। जब हम भी गए थे तो इट वाज कि हाँ भाई चलो, ओपन माइंड में। मैंने हाँ 1 year एमबीए किया है मैं अहमदाबाद से। सो एट दैट जी पॉइंट ऑफ सर, जी टाइम सर। फिक्सेटेड होके जाना कि मुझे यही चाहिए कैंपस से, कि इन्वेस्टमेंट हाँ चाहिए या ये चाहिए, डजंट हेल्प। जो मिलेगा यू हैव टू टेक विद ओपन आर्म्स। जी। तो यस जैसे सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग एमबीए करने से कतरते हैं कि भाई नहीं, हमारे पेरेंट्स के पास उतने फंड्स नहीं है, हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो कैट की तरफ जाते ही नहीं है। तो व्हाट वुड बी योर व्यू ऑन दैट कि भाई अगर हम्बल बैकग्राउंड है इकोनॉमिकली, यस। तो क्या करना चाहिए? एज इन की शुड यू स्टॉप योर ड्रीम्स कि भाई चलो ठीक है एमबीए नहीं, कुछ और करते हैं, कि भाई नहीं हमारे पास 20 लाख 25 लाख का जुगाड़ नहीं है? वो जिटरी आई थिंक फीलिंग मतलब देखो स्वाभाविक है आना। आई मीन इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर समवन टू गेट दैट। यस बट अगर इफ मतलब अगर वो आपका ड्रीम है तो फिर आप तो किसी तरह कुछ कर ही लोगे, मतलब मतलब आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे कि चलो मेरे पास पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। और मतलब मैं भी वो सिचुएशन में था, मुझे पता है कि हाँ 23 लाख कभी जिंदगी में देखे नहीं है, ना मेरे फादर ने या ग्रैंडफादर ने, या मैंने खुद भी नहीं देखे होंगे। बट हाँ वो है कि दैट इज फैक्ट, मतलब हाँ पर वो है कि अगर आप चाहते हो तो फिर आप उस तरफ मेहनत करोगे और आप कन्वर्ट भी कर लोगे मेरे हिसाब से, अगर जो अगर 100% देगा क्यों नहीं होगा। एंड आई थिंक प्रेपरेशन में तो बहुत ज्यादा फंड भी नहीं लगता है। प्रेपरेशन नहीं में नहीं तो सर, नहीं मेहनत सर। लगती है। नहीं 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 मतलब मतलब जो लास्ट ईयर मैंने खुद अपने आप से प्रिपरेशन की, एक मैंने क्वांट की एक बुक उठा ली, बाकी एलआरडीए भी मैंने ऑनलाइन किसी से सोर्स से कर लिया, और क्वांट मतलब वर्बल तो मैंने आर्टिकल पढ़ के ही कर लिए, आरसी सॉल्व करके कर लिया। खाली एमकेट की सीरीज मैंने परचेज की थी और एक मॉक कैट देने के लिए, बाकी तो सब अपने आप कर लिया था। बुक कौन सी उठाई थी मैथ्स की? क्वांटम कैट। क्वांटम कैट, नॉट अरुण शर्मा? तो चलता है ना एक फेमस। नहीं मतलब हाँ अरुण शर्मा इज गुड बुक, बट क्वांटम कैट में अगर आप देखो ना तो एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है, मतलब आप अगर बेसिक स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या एक फॉर्मूला भी कहाँ से आया, तो पूरा मतलब अरुण शर्मा इज डिसेंट बुक, उससे भी अच्छी मुझे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी है, किसी को भी स्टार्ट करना है, तो दैट इज मेरे हिसाब से अच्छी बुक है अरुण शर्मा से। एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कहाँ से किया? ऑनलाइन कौन सा? ऑनलाइन मतलब फ्री सोर्सेज है, मतलब लर्निंग रूट्स के, मतलब उसके ऑनलाइन यूट्यूब पे 40 वीडियो है। फिर एलेक्स ग्रिड करके उसके 90 वीडियोस कुछ है, एलआईडी के साइट है। सो मैंने वो सॉल्व किया है, फिर बाकी तो मैंने थोड़े पजल्स, वही जो टाइम्स के मतलब लॉगिन मिलता है इमकेट का परचेस के बाद, तो उसकी जो एक मतलब डेली और क्या होता है वीकली टेस्ट सीरीज होती है, वो भी सॉल्व किए थे, बस वही सब किया था। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो तुम बहुत रीडिंग ही करते थे, तो तुमको एक्चुअली उतना प्रैक्टिस यस नहीं करना हाँ। पड़ा। हाँ वो हैबिट थी तो हो गया था उससे। परफेक्ट। सो अब क्या है नेक्स्ट 2 मंथ्स का टारगेट बिफोर यू ज्वाइन? जून में होगा आई थिंक एडमिशंस। यस 1 जून से ज्वाइन करना है। तो तब तक जॉब करोगे लास्ट दिन तक, 31 मई तक? नहीं 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 नहीं, फिफ्थ आई एम रिजाइनिंग, 15 मई को रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, सो 15 डेज वो पूरा प्रेपरेशन करोगे, एंड थोड़ा प्रेपरेटरी कोर्स वर्क करवाते होंगे ये अकाउंटिंग एंड ऑल के जी ऊपर। जी। हाँ हाँ 1 से 12 तारीख तक, मतलब 1 जून टू 12 जून दे हैव प्रिपरेटरी कोर्स।
और ऑफलाइन प्रिपरेटरी कोर्स है, उसके बाद 13 से रेगुलर मेन कोर्स चालू हो रहा है। परफेक्ट। व्हाट इज योर मैसेज टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि भाई देखो ये है हितेश, अगर हितेश भी कर सकता है सो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई कि आई मेक इट इनटू सिंपल थिंग्स, लाइक अगर वर्बल करना है तो मतलब दिस थिंग कर लो, मतलब एक रीडिंग की हैबिट बना दो खाली। मतलब कैट जो एफर्ट मांगता है ना तो रेगुलरिटी मांगता है। अगर आप रोज के 2 घंटे भी पढ़ते हो बट रेगुलरली मतलब 3 घंटे पढ़ लो, एक 1 आवर वर्बल, 1 आवर DILR, 1 आवर आप क्वांट कर लो डेली, 3 आवर्स इज मोर देन इनफ। बस यही सिंपल फंडे क्लियर करते जाओगे और खाली मॉक को सीरियसली लेते जाओगे तो कैट अपने आप निकल जाएगा। उसमें ज्यादा मतलब एक होता है नर्व्स को पकड़ना कैट के एग्जाम के टाइम वो भी एक चीज है कि हाँ प्रेशर किस तरह हैंडल करते हो। तो अगर आप अच्छी तरह से परफॉर्म किए होंगे, बेसिक क्लियर होंगे, तो प्रेशर में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। व्हाट आई थिंक इज परफेक्ट। सही है, सही है हितेश। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेरिंग टाइम आउट, बिकॉज मैं कितना दिन से तुमको चेस कर रहा था, लास्ट 3-4 दिन से तुम्हारी यूनिट में शिफ्ट चल रहा था एंड यू सेड आई एम वेरी बिजी। मुझे भी लगता था बाप रे इतना सिंसियर बंदा है कि एक टाइम पे आने की जगह ही वाज लाइक वेरी कमिटेड टू द वर्क। सो अब तुमसे बात करके मेरे को यही लग रहा है कि नहीं, ये बंदा वर्क के बारे में कंप्लीटली इज वेरी वेरी सिंसियर। सो बिकॉज यस बहुत सारे MBA एस्पिरेंट्स वर्क के दौरान बहुत पढ़ाई भी करने की कोशिश करते हैं, बट यू आर वेरी क्लियर कि 8 घंटा मतलब एकदम ऑनेस्ट वर्क, फिर मैं घर आके पढ़ाई। हाँ मतलब हाँ फिर सैलरी किस बात के लिए थे, मतलब मुझे लगता है मेरे को वी हैव टू गिव 100%। और मतलब जो लोग तैयारी करते हैं जॉब के टाइम में भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, मतलब उतना जो भागदौड़ वाली काम नहीं होती है। मतलब ऑपरेशंस में पता है कि कैसे काम करवाना होता है, लोगों से काम करवाना होता है हमें, वर्कर्स से डिफरेंट। सो थोड़ा वो जॉब भी हेक्टिक रहती है, एंड 8 आवर्स फाइनली थका देते मिस्टर सोधी का क्या रिएक्शन था? डिड ही यू टॉक टू हिम कि तुमने उन्हें बताया? हैं। यस, तो क्या उनका क्या था तुम्हें? पहली लाइन तो वो थी कि तूने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मतलब बहुत खुश थे, मतलब ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। लाइक मतलब उनके ड्राइवर के लड़के ने मतलब धमाल मचा दिया मतलब आनंद में ओके, और फैंटास्टिक। हाँ मतलब उन्होंने सपोर्ट भी किया था मेरे को, मतलब गाइडेंस के गाइडेंस भी उन्होंने दिया था कि जब भी जरूरत पड़ती थी तो ही वाज गाइडिंग मी। और ओके, एक मेंटर होना आई थिंक बहुत जरूरी है। कोई एक फादर फिगर, कोई इंसान आदमी को मिल जाए जो उसको गाइडेंस दे, तो यस सर, बैकग्राउंड के बियॉन्ड भी इंसान सोच सकता है। नहीं तो फिर सोसाइटी तो आपको बोलेगी कि भाई ड्राइवर का बेटा है, तू IM के हाँ मतलब लिए देख रहा है। हाँ मतलब मुझे जॉब मिल गई थी, प्लेस में आई वाज माय कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो लोग मतलब क्या जॉब छोड़ के तू पढ़ाई कर रहा है। मतलब अभी भी जो सैलरी है मतलब जो है मेरे पापा से तो 1.5 गुनी है मेरी अभी भी, अच्छा। 1 in 5 टाइम। तो फिर भी लोग बोलते कि क्या जॉब कर, फैमिली मेंबर भी बोलते थे कि पढ़ के क्या करेगा, पापा से ज्यादा कमा ही रहा है तो क्या करेगा पढ़ के। बट हाँ, पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू अपना ड्रीम्स अचीव कर, तू जो कर सकता फैंटास्टिक। मतलब आई मीन अगर ये वीडियो देख के कोई अब इसके बाद अगर कोई बोले कि नहीं मैं MBA नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, आई थिंक वो एक सिर्फ बहाना बनाएगा। तो हितेश, ये इंटरव्यू में है। इसलिए यस, मैं तुमको इतना पेस्टर कर रहा था कि प्लीज तुम हमारे शो पे आओ एंड इंस्पायर पीपल की बैकग्राउंड कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आपको मेहनत करनी है एंड उसके बाद जी सब कुछ मेरे हिसाब से अपने आप एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन। हाँ मतलब अभी तो मतलब मतलब लुकिंग बैक टू क्या क्या किया वो अभी तो याद भी नहीं आ रहा है कि क्या चीज कर, मतलब सब चीज अपने आप मतलब अपने आप अपने जगह पे हो गई। Yes, perfect. Okay, okay, Hitesh. Thank you so much. And थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सर। thank you. Thank you. Bye bye. ओके, बाय, गुड नाइट। Good night.